Hello everyone, I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this 10th lecture of subject Mechanical Engineering Material, and we are going to start our next topic, iron carbon equilibrium diagram, reactions and critical temperature. Let us revise the previous topic. In previous topic, we have learned about allotropy or polymorphism. We also learn about iron-carbon equilibrium diagram, phases on iron-carbon equilibrium diagram. So these three topics we have learned in last lecture. So I hope you all are aware about it. So the learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to interpret iron-carbon equilibrium diagram, identify various temperatures on iron-carbon equilibrium diagram, understand various invariant reactions happens on iron-carbon equilibrium diagram. These are the program outcomes which are achieved through this topic. So let us revise the iron-carbon equilibrium diagram that we have studied in previous lecture. So as we have known to us, this is an y-axis having a temperature. This is an x-axis having percentage of carbon, that is weight percentage of carbon. Okay. So there is one line of 723 degrees centigrade. Yeah, we can say it has 727 degree. This temperature line is A1 temperature line. Below that there is alpha plus Fe3C, that is cementite. It means there is a mixture of perlite. Okay. This temperature is AO temperature, yeah, A0 temperature having temperature line 210 210 degree Celsius. This is 6.67 line. Yeah, we can say it has 6.7. There is a formation of cementite. Okay, we know it is the hardest phase found on iron carbon diagram. This is 0.008% of carbon. This is the region of alpha ferrite and maximum solubility 0.025 at 0.022. Okay, this is the region of alpha ferrite. Alpha ferrite having structure BCC, we known to us. So there is one A1 temperature, there is A2 temperature, there is A3 temperature, there is ACM temperature, and this temperature is A4 temperature. Temperature is A4 temperature. Okay. So these are the four temperatures we have found on the iron carbon diagram. We have 3 points on iron carbon diagram. This is eutectoid point, this is eutectic point, and this one is the peritatic point. We have known to us. Okay. Eutectoid, eutectic, and this is peritatic. तो ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के ऊपर 3 रिएक्शन होगी. यहाँ पे यूटेक्टोइड रिएक्शन होगी, यहाँ पे यूटेक्टोइड रिएक्शन होगी और यहाँ पे पेरिटेटिक रिएक्शन. बराबर. अभी और एक बार हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि सबसे बॉटम स्टेज में आपको अल्फा फेराइट मिलेगा. जैसे अल्फा फेराइट को हम 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो हमें आस्टेनाइट मिलेगा. आस्टेनाइट को गैमा बोलते हैं और इसका फेज जो रहता है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो FCC रहता है. बराबर. तो फिर हम हिट करते हैं तो 1398 के आसपास हमें यहाँ पे डेल्टा फेराइट मिलता है. डेल्टा फेराइट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो फिर से BCC रहता है. बराबर है. और ये जो 6.67% ऑफ सेमेंटाइट जो रहता है या आयरन कार्बाइड रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो आर्थोम्बिक रहता है. ये हमने पढ़ा था. फिर
अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर को हम परलाइट बोलते हैं, और आस्टेनाइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर को हम लिड्यूबराइट बोलते हैं। बराबर है। परलाइट जो रहता है, परलाइट यहाँ पे मिलता है हमें, बराबर है। परलाइट हमें यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो पेरिटिटिक, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो यूटेक्टोइड रिएक्शन, बराबर है। तो जब हम क्या करेंगे, ये जो आस्टेनाइट है, आस्टेनाइट को जब हम इस 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर कूल करेंगे तो हमें परलाइट मिलता है, बराबर। तो परलाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूटेक्टोइड रिएक्शन। फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है अपना, यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर क्या है, लिक्विड है। इस लिक्विड को जब हम कूल करेंगे, इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, कूल, तो इसके नीचे क्या है, आस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट मतलब लिड्यूबराइट। ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो रहा है, ये 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये जो पेरिटेटिक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, पेरिटेटिक पॉइंट है, 1493 के आसपास है, रिएक्शन हो रहा है। अभी इसके ऊपर क्या है, देखिए इसके ऊपर ये वाला जो रीजन है, जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये जो रीजन है, इस रीजन में आपको मिलेगा डेल्टा प्लस लिक्विड। ये रीजन में आपको क्या मिलेगा, डेल्टा प्लस लिक्विड। और नीचे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे नीचे मिल रहा है आपको आस्टेनाइट, बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस लिक्विड कंबाइन होगा और हमें क्या मिलेगा, आस्टेनाइट मिलेगा। डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड कंबाइन मतलब ऐड होगा, तो हमें क्या मिलेगा, आस्टेनाइट। और ये सब प्रोसेस जब हम कूल करेंगे, स्लोली कूल करेंगे, तब यहाँ पे ये हैपन होती है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर में तो लिक्विड था, इस लिक्विड के साथ ये गैमा, बराबर है, लिक्विड के साथ ये गैमा का ये वाला रीजन हो जाएगा। इस लिक्विड के साथ इधर साइड में कौन भरा हुआ है, पूरा इधर साइड में कौन भरा हुआ है, इधर साइड में सीमेंटाइट। तो ये जो रीजन हो गया Fe3 प्लस सीमेंटाइट का रीजन रहेगा, बराबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयरन कार्बन डायग्राम। हम यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो दिस इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस हम कौन से बोलते हैं इसको, दिस इज अ कूलिंग प्रोसेस, राइट। Let us discuss about the critical temperatures on iron-carbon equilibrium diagrams. So the critical temperature are those at which phase or transformation occurs during heating or cooling of an alloy. Critical temperature मतलब क्या होता है, these are the temperature at which phase और transformation occur, जहाँ पे phase का transformation होता है, इसकी वजह से हीटिंग और कूलिंग करने की वजह से उस टेम्परेचर्स को हम क्रिटिकल टेम्परेचर्स बोलते हैं। फर्स्ट इज A0 टेम्परेचर। इट इज द Curie temperature when the magnetic to non-magnetic change of cementide occurs. The structure can develop defects such as dislocation or fault. Cementite is metallic and ferromagnetic with a Curie temperature around 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको A0 की वैल्यू 210 डिग्री सेंटीग्रेड पता होनी चाहिए। जैसे हम आयरन कार्बन डायग्राम देखें तो दिस इज A0 टेम्परेचर। A0 मीन्स 210 डिग्री, 210 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। इस टेम्परेचर पे सीमेंटाइट मेटेलिक और फेरोमैग्नेटिक रहता है, बराबर है। और द स्ट्रक्चर कैन डेवलप डिफेक्ट सच एज डिसलोकेशन और फॉल्ट इसमें इसके वजह से आ सकते हैं, बराबर है। तो पेपर में आता है कि A0 टेम्परेचर कितना है, तो 210 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर इज A1, दैट इज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज 727 डिग्री सेंटीग्रेड। It is the temperature at which austenite to ferrite transformation ends on cooling or at which ferrite to austenite transformation start on heating. ये जो था 727 या 723, अगर हम कूल करते हैं मतलब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आस्टेनाइट था यहाँ पे, आस्टेनाइट का फेराइट में कन्वर्जन हो जाएगा, या अगर हम हीट करेंगे तो फेराइट का आस्टेनाइट में कन्वर्जन हो जाएगा, बराबर है। इट इज अ टेम्परेचर व्हेन यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स। हमें अभी पढ़ा था कि या इस टेम्परेचर पे A1 टेम्परेचर पे
यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन। यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि वहां पे यूटेक्टॉइड रिएक्शन हो जाएगी। एट दिस टेम्परेचर परलाइट चेंजेस टू ऑस्टेनाइड ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा। इस टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइड का परलाइट बन सकता है कूल करेंगे तो, या फिर परलाइट को हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ऑस्टेनाइट मिलेगा। गॉट इट? तो एवन टेम्परेचर की लाइन ये है, और एवन टेम्परेचर मतलब 727, some in some books 723. Okay, so let us discuss about the A2 temperature. It is called as a Curie temperature of ferrite. You know that A2 temperature is 768 degree centigrade. यहाँ पे ferromagnetic ferrite on heating changes to paramagnetic. At this temperature no change in the microstructure is involved. ये जो है 768 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज A2 टेम्परेचर, बराबर है। ये लाइन हमारी 727 की थी, इससे थोड़ा ऊपर 768 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कोई भी चेंज माइक्रोस्ट्रक्चर में होता नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक जो टेम्परेचर रहता है, फेरोमैग्नेटिक फेराइट जो रहता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो पैरामैग्नेटिक फेराइट हमें मिलता है। बस एक ही चेंज यहाँ पे होता है, और आपने ध्यान में रखना है A2 टेम्परेचर मतलब 768 डिग्री सेल्सियस। Let us discuss about the next temperature, that is a A3 temperature. Okay, it is called as a upper critical temperature. यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक 910 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। ये आपको 0% ऑफ कार्बन वाली लाइन पे दिख रहा है, और ये 910 डिग्री ऐसे इधर 0.8% ऑफ कार्बन तक आया, और ये जो लाइन वाला टेम्परेचर है 727 डिग्री। तो ये 910 से जो 727 का जो रीजन है, इसे हम A3 टेम्परेचर कहते हैं, जो थोड़ी देर बाद पैरेलल लाइन बनती है एक्स एक्सिस के ऊपर। So it is the temperature at which the austenite to ferrite transformation begins on cooling. ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पे ऑस्टेनाइट का फेराइट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि इसके ऊपर में पूरा ऑस्टेनाइट है। ऑस्टेनाइट का क्या होता है? फेराइट में, यहाँ पे फेराइट है, तो ऑस्टेनाइट का फेराइट में ट्रांसफॉर्मेशन जब हो, कूल होगा तब। इट स्टार्ट एट 910 डिग्री। कहाँ पे शुरू होता है ये? 910 डिग्री विद 0% ऑफ कार्बन एंड कम्स टू 727। 910 से शुरू होगा और कम्स टू 727 डिग्री एट 0.8% ऑफ कार्बन। हियर आफ्टर A3 लाइन गोस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बाद A3 टेम्परेचर की लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कैसे जाती है? पैरेलल जाती है टिल 2% ऑफ कार्बन। कहाँ तक? 2% ऑफ कार्बन तक वो पैरेलल जाती है। ओके, सो A3 में आपको ध्यान में रखना है 910 से 727 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रीजन है, उसे हम A3 टेम्परेचर कहते हैं। Let's discuss about the ACM टेम्परेचर। ये जो है यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रही है, बराबर है, ये जो लाइन है, दैट टेम्परेचर लाइन इज कॉल्ड एज ACM टेम्परेचर। ओके, दिस लाइन शोज इंक्रीजिंग द स्लोप फ्रॉम, यहाँ पे जो है ये 727 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन है, और ये जो लाइन है ये 1147 वाली लाइन है, बराबर है। तो ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, जो उतार दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द ACM टेम्परेचर। स्टार्ट विद 727 डिग्री सेंटीग्रेड विद 0.8, यहाँ पे कितना कार्बन का परसेंटेज है? 0.8, एंड एंड्स एट 1147 डिग्री सेंटीग्रेड विद 2%। कहाँ पे खत्म होता है ये? 2% ऑफ कार्बन पे खत्म होता है। So the next temperature is A4 temperature. Okay, so it is the temperature at which austenite transform to delta ferrite. Okay, हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो रीजन था वो डेल्टा फेराइट का था, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना था? 1394 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा? डेल्टा फेराइट जो रहेगा, बराबर है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट, इसके नीचे में क्या है? ऑस्टेनाइट है, तो ऑस्टेनाइट का क्या बन जाएगा? डेल्टा फेराइट बन जाएगा एट 1394 डिग्री सेंटीग्रेड। इन केस ऑफ प्योर आयरन, ये जो है प्योर आयरन के लिए रहेगा। अगर हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो ये जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है, बराबर है। सो प्योर आयरन के लिए A4 रहेगा 1394 डिग्री सेल्सियस, जिसमें
आस्टेनाइट का डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होता है। So let us discuss the reactions found on iron carbon equilibrium diagram. So there are three important reactions taking place in iron carbon system. First is eutectic reaction, second eutectoid reaction, and third is peritatic reaction. So let us discuss about the eutectic reactions. Okay. तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट है हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है और यहाँ पे जो है हमारा टेम्परेचर है 1147 डिग्री सेल्सियस। तो इस हमें रिएक्शन लिखना है, मतलब क्या, इस पॉइंट के ऊपर देखना है। इस पॉइंट के ऊपर कितना है, लिक्विड है जिसमें 4.3% ऑफ कार्बन है, बराबर है। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है गामा प्लस Fe3C। तो रिएक्शन लिखते समय क्या करने का, पहले लिखने का ऊपर वाला पॉइंट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिखने का नीचे वाले पॉइंट। तो देखिए इस पॉइंट के नीचे में क्या है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, 4.3% ऑफ कार्बन का जो लिक्विड था वह कूल करने के बाद गामा प्लस Fe3C मिलेगा। और गामा प्लस Fe3C इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लिड्यूबराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लिड्यूबराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लिड्यूबराइड। तो यूटेक्टिक रिएक्शंस 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं, जहां पे 4.3% ऑफ लिक्विड को कूल करेंगे तो हमें गामा मिलेगा, दैट इज आस्टेनाइट 2.1%, और सीमेंटाइट का तो हमें पता है 6.67%। इन यूटेक्टिक रिएक्शन लिक्विड सॉलिडिफाई, मतलब कूल किया हमने तो हमें मिक्सचर ऑफ आस्टेनाइट कंटेनिंग 2.14% ऑफ कार्बन एंड सीमेंटाइट, इस मिक्सचर को हम लिड्यूबराइट कहते हैं। दिस फेज मिक्सचर इज नोन एज लिड्यूबराइट। द एवरेज कार्बन कंटेंट इन द लिड्यूबराइट इज, ये ध्यान में रखना है, 4.3% ऑफ कार्बन। Eutectic reaction occurs at a constant temperature, this known as the eutectic temperature, that is 1147 degree Celsius. I hope you all clear about this reaction. So let us discuss about the peritatic reaction. Okay, तो peritatic point देखते हैं अपन अभी, है ना। यहाँ पे ये जो है दिस इज अ peritatic point, और यहाँ पे ऊपर में आपको जो है यहाँ पे डेल्टा प्लस लिक्विड का रीजन है, बराबर है। तो जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा, और इस पॉइंट के ऊपर में क्या है, डेल्टा प्लस लिक्विड है, और इसके नीचे क्या है, आस्टेनाइट है, बराबर। देखना है यहाँ पे, देखिए 0.11% ऑफ डेल्टा फेरेट, डेल्टा फेरेट जिसमें 0.11% ऑफ कार्बन है, और लिक्विड जिसमें 0.51% ऑफ कार्बन है, बराबर है। जब हम इसको कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आस्टेनाइट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, आस्टेनाइट मिलेगा। और ये सब 1493 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, 1493 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने आपको बताया उस पॉइंट के ऊपर देखना है और राइट साइड में लिखना है उस पॉइंट के नीचे का, बराबर है। तो डेल्टा प्लस लिक्विड ने हमको मिला आस्टेनाइट। हमें क्या मिला, आस्टेनाइट। डेल्टा में कार्बन की मात्रा 0.11, लिक्विड में कार्बन की मात्रा 0.51, और आस्टेनाइट में कार्बन की मात्रा 0.16। व्हाट इट, इन पेरिटिक रिएक्शन लिक्विड एंड डेल्टा आयरन ट्रांसफॉर्म इनटू आस्टेनाइट, बराबर है। लिक्विड और जो डेल्टा आयरन था उससे हमें आस्टेनाइट मिला, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.16। दिस पेरिटेटिक रिएक्शन ऑकर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी रिएक्शन होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। दिस नोन एज द पेरिटेटिक टेम्परेचर इज 1493। आपने ध्यान में रखना है पेरिटेटिक टेम्परेचर होता है 1493 डिग्री सेल्सियस। So eutectoid reaction, this is the last reaction happen on iron carbon diagram. तो यूटेक्टोइड रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो इस पॉइंट पे, बराबर है। यूटेक्टोइड रिएक्शन इस पॉइंट पे होती है, यहाँ पे, बराबर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज यूटेक्टोइड पॉइंट। अभी इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर गामा है, और इसके नीचे क्या है, अल्फा प्लस Fe3C। तो कैसा लिखेंगे आप, गामा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिखेंगे अल्फा प्लस Fe3C, बराबर है। गामा का परसेंटेज कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, 0.8। गामा का परसेंटेज कितना दिख रहा है, 0.8। और ये कहाँ पे हो रहा है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक्स में कितना रहता है, 727 रहता है, कोई भी लिख सकते हैं आप, बराबर है। तो आस्टेनाइट को जब हम कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट, और उसको हम क्या बोलते हैं, परलाइट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परलाइट बोलते हैं, बराबर है।
So the eutectoid reaction describes the phase transformation of one solid into two different solid. यूटेक्टोइड इसमें क्या हो रहा है, एक सॉलिड क्या है हमारा आस्टेनाइड, इससे हमारे दो सॉलिड बने अल्फा प्लस Fe3C. In the Fe3C system मतलब iron carbon system, there is a eutectoid point at approximately 0.8% of carbon and 723 डिग्री सेल्सियस. देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम अगर नीचे बनाते हैं तो यहाँ पे 0.8% ऑफ कार्बन रहेगा, बराबर है, और टेम्परेचर कितना रहेगा 723 डिग्री सेल्सियस, बराबर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज यूटेक्टोइड पॉइंट. The phase just above the eutectoid temperature for plain carbon steel is known as austenite or gamma. क्या बोला, द फेज जस्ट अबोव द यूटेक्टोइड टेम्परेचर, इसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है, गैमा. गैमा मतलब क्या होता है, ऑस्टेनाइट. द फेज जस्ट अबोव द यूटेक्टोइड टेम्परेचर फॉर फेयर कार्बन स्टील इज नोन एज ऑस्टेनाइट और गैमा. So we have finished our this topic. We in this lecture we achieved some unit outcome. First is use the iron carbon diagram for given application. Identify given phase diagram and reactions with a justification. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have learned about iron carbon diagram, various critical temperature, that is A0, A1, A2, A3 and A4 temperatures. We also learn about the reactions on iron carbon diagram such as eutectic reaction, ferritic reaction and eutectoid reaction. So these are the program outcomes which are achieved through this lecture. So these are the most likely asked question in MSBT. First is draw iron carbon equilibrium diagram. State significance of A0, A1 and A2 temperature. State significance of temperature ACM, A3 and A4. Explain eutectic reaction. Explain eutectoid reaction and explain periodic reaction. So thank you very much guys. In next lecture we are going to study about steel and its classification. Okay. As you have any doubt in this lecture, you have directly contact with me. Okay. So thank you very much. Have a nice day and happy learning.